जिला अक़लियती बहबूद अफसर कर्नूल महबूब बादशाह ने कहा है कि वक्फ अराजी की खरीद और फरोख्त गैर कानूनी है। इन्होंने कहा कि कर्नूल के करीब तेनी देवरा पाड़ू में सर्वे नंबर 19 में 59 एकड़ 90 सेंट अराजी को प्राइवेट अफराद ने फ्लैट्स के तौर पर फरोख्त किया था। इस जगह मकान की तामीर जारी है। महकमे सर्वे के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर जांच के लिए कर्नूल पहुंचे हैं। इनका कहना था कि जिन लोगों ने अराजी खरीदी है उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अहदेदारों ने कहा कि वो अगले 16 और 17 को कर्नूल सर्वे ऑफिस आए और खरीदी गई जमीन से मुतालिक दस्तावेजात दिखाएं। దిన్నదేవరపాడులో సర్వే నంబర్ 19లో 59 ఎకరాల 90 సెంట్లు ఉంది. దీంట్లో కొంతమంది కొన్ని ఇండ్లు కట్టడం జరుగుతుంది. దీని మీద హైకోర్టు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ప్రకారంగా ఈ ఏరియా అంతా సర్వే చేస్తూ అందులో ఉన్న 126 మందికి నోటీసులు సర్వ్ చేసి అక్కడ హైకోర్టుకి తెలియజేయాలని చెప్పడం జరిగింది. రేపు నెల 16, 17వ తేదీ ఇక్కడ వాళ్ళందరూ ఏమన్నా వచ్చి ఇక్కడ చెప్పుంటే వాళ్ళకి సంబంధించి కమిషనర్ ల్యాండ్ కమిషనర్ గారు వస్తారు వక్ఫ్ బోర్డు సంబంధించి అక్కడ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పుకోవచ్చు. వక్ఫ్ బోర్డు తాలూకా ల్యాండ్ అనేది 59 ఎకరాలు. అందులో ఎంక్వైరీ ఈ నెల 16, 17 తారీఖుల్లో 11 గంటలకి ఇక్కడ కర్నూలులోని రీజనల్ సర్వే ఆఫీస్లో సర్వే కమిషనర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది, విచారణ. ఈరోజు నోటీసులు సర్వ్ చేస్తున్నాము అందరిపైన. ఆ ఎంక్వైరీకి అందులో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ హోల్డర్స్ కానీ లేదా ఏ రకంగా కానీ హక్కు పొందాము అని తెలిపిన వాళ్ళు వారి యొక్క హక్కు పత్రాలు సమర్పించవలసి ఉంటుంది. काकीनाडा गोपालपुरम में आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने YSR कापुनिष्टम प्रोग्राम के तहत ख्वातीन में माली मदद तकसीम की। वजीर आला ने बटन दबाकर मुस्तहिक ख्वातीन के बैंक अकाउंट में रास्त रकम मुंतकिल की। 3,38,700 से जायद ख्वातीन में 508.18 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। YSR कापुनिष्टम स्कीम के तहत हुकूमत कापू, पालीजा, तिलगा और अंतरी तबके की 45 से 60 साल उम्र की ख्वातीन को हर साल 15,000 रुपए माली मदद करती है। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि YCP हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर पर 95% अमल किया है। మనం బటన్ నొక్కిన వెంటనే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే బటన్ నొక్కిన వెంటనే DBT డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా నేరుగా నా అక్క చెల్లెమ్మల అకౌంట్లలోకి డబ్బు వెళ్ళిపోతా ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో DPT పథకాలు జరిగేటివి. DPT అంటే ఏమిటో తెలుసా? దోచుకో, పంచుకో, తినుకో. आंध्र प्रदेश बीजेपी सेक्रेटरी विष्णुवर्धन रेड्डी ने जगन हुकूमत से रवा बरस प्राइमरी स्कूल के इंतजाम को रोकने की मांग की है। उन्होंने YCP हुकूमत पर नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडर ने कहा कि रियासत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अमल नहीं हो रहा है बल्कि जगन एजुकेशन पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। They are cheated to Andhra Pradesh youth and unemployed. That's why Government of Andhra Pradesh, they are not implemented NEP, National Education Policy. Government of Andhra Pradesh, they are implemented JEP, that is Jagan Education Policy. Even this is not correct. The Government of Andhra Pradesh, once again, they are rethinking what their schools, they are merging 3rd class, 4th class, 5th class to 6th and 7th, 8th classes. Why? Because there no infrastructure is there in Andhra Pradesh government schools. This academic year, immediately stop that merging the schools. Next academic year, once they are discussed, students, parent committees.
बीजेपी रियासती सदर सौम्य वीरा राजू ने हम हमारी अमरावती बीजेपी संकल्प यात्रा के नाम से 7 रोजा पदयात्रा का आगाज किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वाईसीपी और टीडीपी हुकूमत अमरावती को तरक्की देने में नाकाम हो चुके हैं। दोनों ने मरकज के फंड से इलाके को तरक्की नहीं दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मरकजी हुकूमत अमरावती के किसानों के साथ है। उन्होंने जगन हुकूमत पर 3 सदर मकाम के जरिए करप्शन को फरोग देने के एजेंडे पर अमल करने का इल्जाम लगाया। 8 years onwards, there is no capital. What is the blueprint of YCP government today? They are always says to only 3 capital, 3 corruptions. One government is 1 capital, 1 corruption. Ours is no corruption. Ours is development agenda. We are ready to construct central government institutions. सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने जरूरी अशिया पर लगाई गई जीएसटी को हटाने के लिए तमाम पार्टियों से मुत्तहिदा जद्दोजहद करने की अपील की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के फैसले को अवाम मुखालिफ करार दिया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर सरमायादारों के मफाद में काम करने का इल्जाम लगाया। Diamonds, everything, they will be given only 1.5% or 2% GST, whereas the others, the common people who are purchasing essential commodities, they have to pay more. This is very unfortunate. From the beginning, this Narendra Modi government is serving the interest of the corporates. They are penalizing the common man. We are all condemning the attitude of the central government. Even the regional parties are also coming forward in this. I would like to share with their opinion, and I request our central leadership also to take up the. करनूल बलदिया कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन का इनेकाद अमल में लाया गया। करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के लिए 5 अराकीन को इत्तेफाक राय से मुंतखब किया गया। मेयर BY रमैया, रुकन असेंबली कटासरानी राम भूपाल रेड्डी और हफीज खान ने मुंतखब अफराद को मुबारकबाद पेश की। नए स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स P पल्लवी, वैजा अरुणा, सना श्रीनिवास, M राजेश्वर रेड्डी और सैयद मलकमा बेगम शामिल हैं। करनूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के तहत रैली निकाली गई। स्कूल से झंडा लहराकर रैली रवाना की गई। महकमे मेहनत के मावन अफसर ने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी बेशुमार कुर्बानियाँ सबके लिए रोल मॉडल हैं। इस मौके पर करनूल लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर वेंकटेश्वर राव ने मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमात को याद किया। इस प्रोग्राम में स्कूल का अमला भी शरीक रहा। अलवरी सीतारामा राजू के 125वें सालगिरह तकारीब के मौके पर तलबा के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम का ऐलान किया गया, जिसमें मजमून नवीसी, मुसव्वरी और मुजस्समा साजी के मुकाबले शामिल हैं। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक मुकाबले होंगे। 12 अगस्त को इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। Conducting 125th birth anniversary of Sri Alluri Sitaram Raju on behalf of our Balotsav committee. The main object of this Utsav is to encourage the children from 5th to 10th class. So all the students are invited and participate in these competitions and win the prize. करनूल टीडीपी इंचार्ज TG भरत ने कहा कि अगर वो रुकन असेंबली मुंतखब होते हैं तो करनूल में सनतों को लाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। वो शहर के 3rd वार्ड में टीडीपी की रुकनिया साजी मुहिम प्रोग्राम में शामिल है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि इलेक्शन के दौरान आवाम सोच समझकर वोट दें। उन्होंने कहा कि टीडीपी इक़्तिदार में रियासत की तरक्की होगी। BSNL की तमाम यूनिट्स और एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम नेटवर्क, टावर्स और ऑप्टिक फाइबर को निजी शोबे के हवाले करने की मुखालफत की गई। प्रकाश नगर में वाक़ BSNL दफ्तर पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत टावर और ऑप्टिक फाइबर को निजी शोबे के हवाले करके 40,000 करोड़ रुपए कमाने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने कहा कि टावर और ऑप्टिक फाइबर को निजी इदारों के हवाले करने से अवामी इदारे को बहुत नुकसान होता है। उन्होंने हुकूमत से फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया।
सीईओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी पीवी रमन्ना ने उम्मीद जाहिर की है कि कर्नूल जिले के खिलाड़ी गुंटूर में मुनक्किद होने वाले रियासती सतह के योगा लीग मुकाबलों में फातेह के तौर पर वापस आएंगे। रियासती योगा एसोसिएशन के सेक्रेटरी अविनाश शेट्टी और दीगर ने मकामी आउटडोर स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब मुनक्किद की और सीईओ रमन्ना ने कहा कि जिले से 40 खिलाड़ी योगा लीग में शिरकत कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी मेडल के साथ ही वापस होंगे। లో దాదాపుగా 40 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొంటున్నారు. వీరు మంచి ప్రతిభ కనబరిచి కర్నూలు జిల్లాకు మంచి పేరు ప్రతిష్టలు, అదేవిధంగా వారి తల్లిదండ్రులకు, వారు చదువుతున్నటువంటి విద్యా సంస్థకు మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని చెప్పి జిల్లా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ తరఫున కోరడం